Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we will learn about the correction of article that is very significant and most important lecture. Do listen with great attention and care so that you can learn the correct use of article a and n. So today lecture is special for the student. Uh, Correction of articles. Most of the student they are using whether they are speaking or whether they are writing. Usually they do not know about the articles, how, when and how to write use article, so that they have a lot of problem. They are facing a lot of problem about the using of article. So this lecture is specifically for those students who are learning and who has a little bit hesitation about the using of correct article. This is special lecture for them. So till last slide you will have to learn about such kind of examples and as well as the rules and regulation of using articles. So the learning outcome of after taking this lecture, after watching this lecture, you will be able to use the correct article in the sentence, because this lecture will give you a perfect insight for using the article and the. So come to the first slide for the learning. Firstly, it is my duty to introduce you about the definitions. Article a, and the. There are three articles, two type of articles. Are determiners are noun maker that function to specify if the noun is general or specific in its reference. Often the article chosen depends on the writers and the reader understand the reference of the noun. अब हम इसकी डेफिनेशन को उर्दू में देखेंगे। आर्टिकल जो कि आ, एन और दा होते हैं, ये आपके डिटर्मिनर होते हैं या आपके नाउन जो होते हैं, नाउन मेकर होते हैं, जो ऐसे फंक्शन करते हैं कि जो किसी भी नाउन को जनरल बताते हैं या किसी भी नाउन को स्पेसिफिक रेफरेंस के ज़रिए बताते हैं। अक्सर ये आर्टिकल जो है राइटर और रीडर चुनते हैं ताकि उनको असल नाउन का पता चल सके कि वेदर वो नाउन जो यूज़ हुआ है वो स्पेसिफिक है या जेनेरिक है या आम है, कॉमन है या स्पेसिफिक है। इसलिए इसकी डेफिनेशन मैंने आपके सामने की है। अब हम अपनी सेकंड स्लाइड की तरफ जाते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। First is indefinite articles, that is a or n. There are two articles a or n, and the second one is definite article, that is the or the. So, firstly, I would tell you about whether it is a da or the. कुछ लोग जो है इसको दा भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं, लेकिन ये दा भी है और दी भी है। दा आपने तब बोलना है जब इसकी अगला वर्ड जो है उसका जो साउंड है, अगर ये वावल होगा तो फिर हम दा पढ़ेंगे। जैसे द एलिफेंट, तो अब द एलिफेंट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, द एलिफेंट, बिकॉज ई जो है वो आपकी साउंड दे रहा है वॉल्स की, तो इसलिए हमने कहा है द एलिफेंट पढ़ना है। इसी तरह द एंड, अब ई जो है वो आखिर पे ई शुरू के अंदर जो है आता है और इससे पहले दा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, द एंड। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट हो तो फिर हम दा पढ़ेंगे द बॉय द गर्ल्स। अब बॉय और गर्ल्स में जो है दो हैं, जी और बी जो है, इसलिए हम इससे पहले जो लगा हुआ है हम उसको आर्टिकल दा पढ़ेंगे। और ये मेरा लेक्चर जो होगा ये दो हिस्सों में होगा, और आज हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं about the indefinite article a and a with the example as well as explanation. So this lecture have two parts. First part is right now I am presenting you in front of you, but the later part would be presented tomorrow or day after tomorrow, because right now I am working on it. So you should watch the second part, that is very important, that is the on my YouTube channel, and you should subscribe my channel and as well like my all video so that you can get my video on your screen. So come to the next slide. So uses of articles, I would like to define these definite article and indefinite article. Indefinite article, the articles
A and an are indefinite articles. They are used within a singular countable noun when the noun refer to a non-specific or generic. इसका मतलब ये है कि इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो आ और एन हैं, और जो आम तौर पर क्या है कि सिंगुलर और काउंटेबल जो कि सिंगल होते हैं और जिनको काउंट किया जाता है नाउन जो है उनके साथ लगता है, और नाउन जो है जो कि आम तौर जो है नॉन स्पेसिफिक हों और जेनेरिक हों, आम हों, उनके साथ लगता है। कैसे, मैं अब आपको एग्जांपल कर दूं। फिर करो मैं कहता हूँ आ बॉय, आ गर्ल्स। अब ये जो है जेनेरिक हैं, स्पेसिफिक नहीं हैं। आ बॉय एंड गर्ल, आ स्कूल, आ टीचर। It means that we are talking about a common thing, we are not talking about a specific thing. So jump to the next definite articles. Definite article, the is definite article. It is used to show specific reference and can be used with the both singular and plural and with the both countable and uncountable. अब इसको समझने की बड़ी सख्त ज़रूरत है, लेकिन इसका हमारे जो एग्जाम्पल होंगे, जो रेफरेंसेस होंगे, वो हम दूसरे पार्ट में करेंगे, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ। द इसका मतलब ये है कि द आर्टिकल जो है वो सिंगुलर के साथ भी लगेगा और प्लूरल के साथ भी लगेगा। इसमें स्पेसिफिक के साथ भी लगेगा और अनस्पेसिफिक के साथ भी लगेगा, और काउंटेबल के साथ भी लगेगा और अनकाउंटेबल के साथ भी लगेगा, लेकिन ये स्पेसिफिक करेगा। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको मैं एग्जाम्पलीफाई कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। अगर हम देखेंगे सिंगुलर के साथ, मैं कहूँ दिस इज़ द बॉय हु मेट मी यस्टरडे। अब दिस इज़ द बॉय, देयर इज़ ए सिंगल बॉय, दैट्स वाई आई यूज़ दिस इज़ द बॉय। अब ये द बॉय जो है ये स्पेसिफिक हो गया है, इसलिए ये सिंगुलर भी है लेकिन ये स्पेसिफिक है। अगर प्लूरल होंगे तो दीज आर द बॉयज़ हु मेट मी एट कॉलेज, ये वो लड़के हैं जो मुझे कॉलेज मिले थे। अब प्लूरल के साथ भी लग गया है। और काउंटेबल जो है जिसको काउंटेबल कहते हैं, दिस इज़ द पेन, अब पेन काउंटेबल है। विच आई बॉट फ्रॉम मार्केट, ये वो पेन है जो मैंने मार्केट से खरीदा था। अनकाउंटेबल, दिस इज़ द गिफ्ट, दिस इज़ द ऑनेस्टी विच शो मी एनेबल मी अ ग्रेट मैन। अब इसमें क्या है, ऑनेस्टी जो है हमने स्पेसिफिक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ भी हमने आर्टिकल दा लगा दिया है, तो इस तरह ये जो है सबके साथ लगता है। सो हम इनकी डेफिनेशन करने के बाद नेक्स्ट वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। वी हैव सम एग्जांपल of a and n, because today we are talking about the specific indefinite pronoun. We are not talking about a definite pronoun. Indefinite pronoun a and n are used with the singular countable noun, and a and n are used with the singular countable nouns which the noun is non-specific or generic. अब हम कहते हैं कि आ और एन जो है वो सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा, क्योंकि काउंट करेंगे जो गिनती हो सकते हैं, और नॉन स्पेसिफिक हों या फिर जेनेरिक हों जो जनरल हों उनके साथ हम लगाते हैं। सच एज आई हैव एग्जांपल इन अ कलर, यू कैन सी इन अ ग्रीन कलर, आई डोंट ओन अ कार। We are talking about a car. It is not any specific car. In this sentence, car is a singular countable noun that is not specific. It could be any car, not specific car. Over here, you can show that we are talking about any car. We are not talking about a specific car. It can be any car. I don't own a car. That's why he used the article a, and it is also singular. And if it would be specific, we would have used sentence something like I don't have the car who has two engines. It mean का मतलब ये है कि मेरे पास वो कार नहीं है जिसके दो इंजन्स होते हैं, इसलिए क्या कि ये कॉमन है। तो ये इसकी एग्जांपल है कि ये एक जेनेरिक लगती है और कॉमन थिंग और सिंगुलर के साथ लगती है। सो जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। शी वुड लाइक टू गो टू यूनिवर्सिटी दैट स्पेशलाइजेज in the teaching. In teaching specific, over here the word start university with a u. University is singular countable noun, university एक है, although it begins with the vowels. The first sound of the vowel is j, a j. Thus a instead of n is used. In this sentence it is also generic. It could be any university with this specialization, not a specific one. अब हम मैं इसको आसान वर्ड में समझाने की कोशिश करूँगा।
क्योंकि पुरानी आइडियाज़ के मुताबिक होता यह था कि हम यूनिवर्सिटी, क्योंकि यू से वॉल से शुरू हो रही है, तो हमें ये कंसेप्ट दिया गया था कि आप जो वॉल्स होगा उससे पहले एन लगाना है, और जो आपका कॉन्सोनेंट होगा उससे पहले आपने आ लगाना है। तो यूनिवर्सिटी क्योंकि यू से शुरू हो रहा है, तो इसकी रीज़न ये है कि आपने वर्ड को नहीं देखना नाउन के, आपने उसकी साउंड को देखना है। देखिए यूनिवर्सिटी एक है, लेकिन इसका वर्ड जो है वॉल से शुरू हो रहा है, यू इज़ अ वॉल, लेकिन इसकी जो साउंड निकल रही है वो ज साउंड है या या साउंड है, और इसलिए क्योंकि उसकी जो है यूनिवर्सिटी जो है वो यू साउंड है, अपनी साउंड है, इसलिए उससे पहले हमने क्या है आ लगाना है, ना कि एन लगाना है, क्योंकि वो आ की नहीं आवाज़ दे रहा। सिंपली यू जो है आसान वर्ड में ये भी कहूँगा कि यू जो है दो किस्म की आवाज़ें देता है। यू एक अपनी आवाज़ देता है, यूनिवर्सिटी यूनिफॉर्म, लेकिन यू जो है अपनी आवाज़ से हटकर आ की आवाज़ भी देता है। अब जब यूनिवर्सिटी यू आ की आवाज़ देगा तो उससे पहले एन लगेगा, अगर यू जो है अपनी आवाज़ देगा तो उससे पहले आ लगेगा। जैसे क्या है, यूनिवर्सिटी है आ यूनिवर्सिटी, और अम्ब्रेला है, ये अम्ब्रेला नहीं है, इसलिए क्या है हमने एंड अम्ब्रेला होगा। ये स्लाइड ऐसे है ताकि आपको समझ सकते। अगेन मैं एक चीज़ रिपीट कर दूं कि आपने नॉन से पहले जो हमारा उससे पहले हमने आर्टिकल लगाना है, तो आपने वर्ड को कंसिडर नहीं करना कि ये वेदर नाउन है या वेदर ये कॉन्सोनेंट है। यू हैव टू कंसिडर द साउंड ऑफ द वर्ड, आपने उसकी साउंड को देखना है, तब जो है आप सही आ और एन का इस्तेमाल कर सकेंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आई वुड लाइक टू ईट एन एप्पल। अब जो है आप देखें कि एप्पल का आ जो है वो वॉल्स है, इससे पहले एन लगा, लेकिन आ साउंड भी आ की दे रहा है। अब इन द सेंटेंस एप्पल इज़ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक, इट कुड बी एनी एप्पल। अब ये कोई भी एप्पल हो सकता है, ये स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन इसकी साउंड जो है वो भी आ के आ रहे, इसलिए हमने क्या है कि अब आ ओवर here is a, but it is also produce the sound of a. That's why we are using an apple. A is used. Next example is this. A is used when the noun that follows begins with a consonant sound. फिर अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो, करो जैसे बुक है, आपने एग्जाम्पल लिखे बा इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, दैट्स वाई वी यूज द वर्ड आ, के आर्टिकल आ इज यूज विद द बुक। आ पेन, था इज आ vowel sound, that's why we use the word a, that's why we use a indefinite article a uniform. Over here look at this word uniform, it's start with the u but it is producing the same sound as university was producing, जैसे university or uniform, that's why we use the word a. Note that the uniform starts with the vowels but the first sound is a j और अ या फिर या साउंड है, लेकिन ये यू जो है आ की साउंड नहीं दे रहा, देयरफॉर आ इंस्टेड ऑफ एन इज यूज्ड हियर, क्योंकि उसकी जो साउंड है वो एग्जैक्ट जो है आ की नहीं कर रहा, बल्कि यू अपनी साउंड प्रोड्यूस कर गए। दैट्स वाई वी यूज़ द वर्ड आ यूनिफॉर्म। हमने वर्ड को नहीं देखना, नाउन के फर्स्ट लेटर को नहीं देखना, हमने फर्स्ट उसकी साउंड को देखना है, लेटर की जो साउंड होगी दैट वुड बी परफेक्टली राइट। सो जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। एन इज यूज्ड व्हेन द नाउन दैट follows begin with a vowels. Okay, an is used when the noun that follows begin with a vowel sound. Look at the word which I highlighted. An elephant, e is a vowel sound that start e and it also produce the word sound e. E is a vowels. An elephant, एन अमेरिकन, अब आ भी यहाँ पे अपनी आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए इनसे पहले हमने अमेरिकन लगा दिया और एलिफेंट से पहले एन लगा दिया है। अब हम दूसरी एग्जाम्पल एन एम बी ए। अब जो है ना यहाँ से मैं आसान वर्ड में बताऊँगा कि एम बी ए, क्योंकि आप मैट्रिक भी देखें और एम बी ए भी देखें, मैट्रिक भी एम से शुरू होता है और इसके साथ जो है आपकी जो एम बी है वो भी उसी से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि एम जो है ये एक ही आवाज़ से प्रोड्यूस होता है, इसलिए एन एम बी ए। नोट दैट, और मैट्रिक होगा तो आ मैट्रिक। नोट दैट एम बी ए स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट
but the first sound is a, ambient or a short a sound, therefore an instead of a is used here. इसलिए यहाँ पे जो है a यूज़ किया गया है, दूसरा नहीं किया गया. Sometimes next is the sometimes a or an can be used the first mention, the first time of the noun is mentioned, then in subsequent sentence the article the is used instead. इसके बाद भी किया जाता है, इसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन आपने फ़िलहाल इसको यही समझना है कि आपने साउंड को देखना है, आपने वर्ड को हरगिज़ नहीं देखना. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी है, ही कुड लाइक टू live in a large house. The house should have at least 3 bedrooms and 2 bathrooms. अब हम इसमें 3 सेंटेंस है हम देखेंगे. He would like to live in a large house. In a large house, house जो है H से शुरू हो रहा है, it produce the sound H. अब H भी 2 साउंड प्रोड्यूस करता है, ours और house. अपनी साउंड भी प्रोड्यूस करता है और H की भी प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए यहाँ पे हाउस, यहाँ पे हाउस है, हाउस नहीं है, इसलिए आ लार्ज हाउस है. द हाउस शुड हैव एट लीस्ट. वी आर टॉकिंग फर्स्ट में क्या है कि फर्स्ट सेंटेंस के अंदर जो है द वो स्पेसिफिक नहीं है, वी वर टॉकिंग अबाउट अ कॉमन हाउस. एंड नो, इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस द हाउस शुड हैव एट लीस्ट, इट मीन दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस हाउस विच वी हैव ऑलरेडी मैंशन. द हाउस शुड हैव एट लीस्ट 3 बेडरूम्स एंड द 2 बाथरूम्स. अब ये उसी बात, अब यहाँ आके ये स्पेसिफिक हो गया है, आप नीचे एक्सप्लेन भी किया हुआ है. इन द फर्स्ट सेंटेंस द मेंशन आ इज अ यूज बिकॉज इट इज रेफरिंग टू अ नॉन स्पेसिफिक वर्ड, इट इज रेफरिंग द जेनेरिक. In the second sentence, the is used because now the house has been specified. It means यह है कि दूसरे सेंटेंस में हाउस जो है वो स्पेशल हो गया, इसलिए हमने उसके साथ दा यूज़ किया है. Jump to the next. There are more example in front of you that give you a perfect insight of correcting articles a and n. He is a university student. रेड कलर को हाईलाइट किया गया. अब वहीं साउंड को आप देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी, क्योंकि यू की आवाज़ प्रोड्यूस करे इसलिए इससे पहले क्या लग गया है, आ यूनिवर्सिटी. ही हैज़ एन अम्ब्रेला. अब देखिए अम्ब्रेला, अब यू जो है यहाँ पे अपनी आवाज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, बल्कि क्या आ की है, आ अम्ब्रेला नहीं बल्कि एन अम्ब्रेला, क्योंकि आ की आवाज़ प्रोड्यूस कर रहे इससे पहले हमने एन लगा दिया है. शी विजिटेड मी एन आवर अगो. अब एच जो है वो अपनी आवाज़ जो है नहीं दे रहा बल्कि आ की साउंड दे रहा है. दैट्स वाई वी यूज़ द वर्ड एन आर. शी विजिटेड मी एन आर अगो. इसका मतलब है आर जो है वो आ की आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, एन लगाया है. आई हैव अ हाउस. ओवर हियर आर और हाउस स्टार्ट विद द, बोथ स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट, बट ओवर हियर आई यूज द वर्ड आ बिकॉज एच इज प्रोड्यूसिंग द साउंड एच, नॉट आ. ये आ की आवाज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, दैट्स वाई आई यूज़ द वर्ड आई हैव अ हाउस, बल्कि आर्स और हाउस सेम शुरू होता है लेकिन साउंड का फ़र्क है. हम फिफ्थ सेंटेंस को देखते हैं. वी प्लेड आ वनडे मैच. ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ज़बरदस्त सेंटेंस है. आल्दो द वनडे स्टार्ट विद द ओ एंड ओ इज़ अ वॉवल. यहाँ पे ओ देखें वॉल साउंड है, बट आई यूज़ आ बिफोर वन बिकॉज इट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग द साउंड ऑफ वॉल्स, नॉट कॉन्सोनेंट. ये वॉल्स की आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है, कॉन्सोनेंट की नहीं कर रहा. दैट्स वाई आई यूज़ आ. वी प्लेड आ वनडे मैच, not an one day match. She is an MA, over here MA, while my brother is an BA. अब देखिए यहाँ पे MA M है, ए की आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए एन लगा है, और ओवर हेयर बी जो है बा की आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है, दैट्स वाई वी यूज़ द बा. नेक्स्ट स्लाइड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. आई हैव one part of the lecture has been completed, and now you should wait for the second part, and that would be definite article. So keep join me on my YouTube channel, because I am making up my mind to come on a live in front of you, and I will take your question and then answer it at the moment. So please subscribe my channel and like my video so that you can get my more videos. ये पार्ट मैंने पूरी कोशिश किया है कि डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल को पूरा बताऊं, और डेफिनेट आर्टिकल के ऊपर मैं फिर बात करूंगा. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय
चैनल। इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।